गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर्स ज्योग्राफी में। चैप्टर 7 वाटर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वाटर साइकिल, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, distribution of water bodies, temperature of ocean's current, circulations of ocean water. So these are the topics which we will learn in this chapter. So it means this chapter is very interesting because we will learn about water, and we know that water is familiar to each and everyone, but we will learn something different what we learn as a just as a students, what you learn according to your standard, but you will learn but different what you are already known. Okay, so let's start and move through the chapters. First step, circle the word which you think represent the forms of precipitations. So according to you that in the precipitations, because we will learn in this what is precipitation, what is called precipitations, that is in the form of water we receive on the earth. So what is through in the form we receive water as hail, snow, rain, sleet. So these are the forms of water which we receive. Okay, now you will learn all these things in this chapter. Now let's start the chapter with the introductions. Our earth is referred to as the blue planet. Now why it is blue planet? Again, because it is the earth, that is the total, it has 70% water. Now it's increased. Earlier it was 70, now it's increased to 71%. It means the water level of the earth is increasing. So 71% of the earth is covered with water. So it's appear totally blue. It's totally appear blue when if anyone from the space look through the earth, it will look blue color. So why it's look blue? Because of the percentage of water contained. So 71% of the it's contain water. The remaining 29 is 29. It means it is having land. So because of that, it's been called as blue color. So the part of the earth that is covered with water is known as the hydrosphere. So the water which has been covered, the earth, जो अर्थ को कवर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर. एंड द लैंड, जो लैंड है उसे लिथोस्फीयर के नाम से कहा जाता है, और जो एयर है उसे एटमॉस्फेयर. ये एक्चुअली हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है. तो इसी तरह से जो वाटर बॉडीज है, सो द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. So in this chapter we will study about water cycle, what is been called as water cycle, fresh water, saline water, then distributions and circulations. कि जो water है किस उसमें से circulations किस तरह से होती है, distributions कैसी है. तो first start with water cycle. Now what is water cycle? Again, water cycle, that is you where everyone knows that the cycles, which means that the सर्कल इट्स कंटिन्यू रोटेटिंग, ये जो है रोटेट करता है. और इवन जो साइकिल्स होती है जहाँ पे मोस्टली है ना, ये मूवमेंट, इसका मतलब ये मूवमेंट करता है, सर्कल करता रहता है. तो इसी तरह से समथिंग विच कम्स टू द सेम पॉइंट, जो बार बार एक ही जगह में आके रुक जाता है, अगेन स्टार्ट्स एंड केम टू द सेम पॉइंट्स, दैट इज द साइकिल. सो वी विल लर्न व्हाट इज साइकिल ओवर हियर. वाटर साइकिल, so the continuous movement of water from the earth's surface into the atmosphere. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कंटिन्यू मूवमेंट हो रही है ऑफ वाटर, जो वाटर्स है अर्थ से वापस अर्थ से कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में जा रही है, फिर अगेन बैक टू द अर्थ, फिर वापस अर्थ में बैक करती है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. इसे हम वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं, इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं.
इसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मूव करते हैं आगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं आगे। तो यहाँ पे वाटर साइकिल्स में अगर हम लोग स्मॉल शॉर्ट में बताना चाहें, सो द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू द एटमोस्फियर एंड बैक टू अर्थ अगेन। जब वापस अर्थ में वापस आता है, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, एंड उसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है। सो द वाटर इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। अब यहाँ पे इवापोरेशन होता है। व्हाट इज इवापोरेशन? तो जब भी कोई हीटिंग होती है, जैसे सन की हीट रे, ठीक है ना, जब वो पड़ती है वाटर के ऊपर, मान लो ये वाटर बॉडी है, तो द वाटर स्टार्ट इट्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीजेज हो जाती है, फिर वो गर्म हो जाता है, और फिर जो होता है उसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसमें इवापोरेशन मतलब भाप बनने लगती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इवापोरेट बोलते हैं। इवापोरेशन स्टार्ट होती है। तो जिस तरह से उसमें वेपर बनता है तो वेपर बनता है जिस तरह से, तो वो ऊपर आ जाता है। तो जो ऊपर जाता है वेपर, उसे कहा जाता है इस प्रोसेस को इवापोरेशन या इवापोरेट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है वो इवापोरेट? ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द सन, क्योंकि हीट किसकी मिल रही थी? सन की हीट के थ्रू वो हीट हो गया था, इसके लिए। सो द हीट ऑफ द सन एंड गोज इनटू द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और वापस इस तरह से वापस कहाँ गया वो गया एटमोस्फेयर में। तो वापस एटमोस्फेयर में गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इसी तरह से वो किस फॉर्म में गया? इवापोरेट हुआ, लेकिन वो जब गया तो क्लाउड फॉर्म हुआ। तो इट इज फॉर्म इन द वे ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर दैट वाज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब वो इवापोरेशन हो रही थी तो उसके अंदर वाटर कंटेंट हो रही थी, तो उस तरह से जो भाप था उसमें पानी भी थी, तो उसे हम वाटर वेपर के थ्रू कहा जाता है उसे। सो एज द अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर हैव लो टेम्परेचर, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो जैसे पता है हमें कि हाइट जैसे इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो एटमोस्फेयर के जिस तरह से हम अपर लेयर्स में जाते हैं तो टेम्परेचर लो होता है, तो वाटर वेपर क्या हो जाता है? वो कंडेंस हो जाता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब जहाँ पे वो कूल डाउन हो जाता है। तो जैसे वो कूल डाउन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है किससे? क्योंकि वो तब वाटर ड्रॉपलेट्स था, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर था। अब वो जब ठंडा हुआ तो क्या बन गया? वाटर ड्रॉपलेट्स वापस हो गया, ठंडा हो गया तो पानी हो गया वापस। सो दिस वाटर ड्रॉपलेट्स जब वो एक दूसरे से मिल जाते, क्लिंच होते, मतलब जब एक दूसरे से अटैच हो जाते, और धीरे धीरे फिर क्या बनता है? वो क्लाउड बन जाता है। सो जब ये क्लाउड बनता है तो जब ये क्लाउड क्या होती है? व्हेन द क्लाउड गेट सैचुरेटेड। जब ये सैचुरेटेड मतलब होता है कि कंटेनिंग वाटर, उसकी जो कैपेसिटी होती है क्लाउड में वाटर को होल्ड करने की, ठीक है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसको वो क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन द क्लाउड गेट सैचुरेटेड, जब वो सैचुरेटेड हो जाता है, वो क्लाउड बहुत हेवी हो जाता है, कैरी ऑलरेडी उसने कैरी किया हुआ है वाटर, सो दैट दे कैन नॉट होल्ड वाटर एनी लॉन्गर। जब वो अब नहीं उसको होल्ड कर सकता तो वो क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा, अपना लोड थोड़ा कम करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। तो यहाँ पे प्लेन में मेनली रेन होता है और माउंटेन्स में एज अ स्नो होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस। तो हमें जो वापस बारिश हुई, पानी मिली, वाटर जो हमें मिला इन द फॉर्म ऑफ स्नो या फिर रेन, इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशंस। तो वाटर साइकिल्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इवापोरेशंस। इवापोरेशंस क्योंकि ये किससे हुआ? इवापोरेशन ड्यू टू हीट ऑफ द सन। फिर इवापोरेशन के बाद क्या हुआ? इवापोरेट वाटर जो है वाटर वेपर्स हुआ। फिर जब वो वाटर वेपर्स फिर ऊपर जब गया तो उसने टेम्परेचर्स में डिक्रीज के कारण वो क्या बन गया? वो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स में फिर फाउंड हुआ किसके थ्रू? वो क्लाउड। तो ये फिर क्या बना? वो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब वहाँ पे ठंडा होने के, तो कंडेंसेशन। तो ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ गया, वर्ड्स कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन के थ्रू अब इसके बाद क्या होगा? तीसरा जो था हमारा, तो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, और जो थर्ड वाला है वो हमारा है प्रेसिपिटेशंस। तो ये तीसरा है प्रेसिपिटेशंस। तो इसी तरह से इवापोरेशंस, कंडेंसेशंस एंड प्रेसिपिटेशंस, ये थ्री जब ये कंटिन्यू होती है, पहला इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशंस, तब जाके वो वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है अर्थ में जो वापस आता है, कम बैक टू द अर्थ एंड सीप डाउन इनटू द अर्थ। जब वो वापस अर्थ में, लैंड में सीपिंग होती है, वापस मिट्टी जो है सोख लेती है, तो कुछ जो है उसमें प्लांट सोख लेती है, कुछ ओशंस में वापस चला जाता है। सो द साइकिल ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशंस,
इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि ये कंटिन्यू, ये रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि सन अगेन इट विल राइज एंड अगेन इट विल गिव हीट, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, तो इसीलिए ये साइकिल है, तो द साइकिल्स कंटिन्यू। तो इसी तरह से ये साइकिल वाटर साइकिल है, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे वापस देखो, यहाँ पे इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक बार हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सन आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है ना, तो सन्स के थ्रू अब यहाँ पे जो हीट मिली सन से, तो ये हीट, ये वाटर है, तो ये हीट से क्या हुआ, जो हीटिंग हुई थी, इससे इवापोरेशन हुआ, फिर इवापोरेशन के थ्रू जो ऊपर जाए तो वहाँ पे ऊपर टेम्परेचर जो डिक्रीज हुई, तो कंडेंसेशन मतलब वो ठंडा हुआ, फिर वो वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और फिर धीरे धीरे क्लाउड फॉर्म हुआ। दैट वाज, ये पूरा प्रोसेस ही कंडेंसेशन में आ गया। फिर जब वो बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर पाता तो सैचुरेटेड हो जाता है, तब वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो जब वो डिस्चार्ज करता है तो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस, तो जब वो वापस नीचे आता है तो किस फॉर्म में आता है, आइदर रेन में होता है या फिर स्नो में होता है, ठीक है। तो जब वो वापस नीचे आता है यहाँ पर, तो वापस दैट वाज स्पेकुलेशंस, यहाँ पे मतलब कुछ पानी जो है कुछ तो ओशन में वापस चली जाती है, कुछ जो है सॉइल, जो हमारी सॉइल है वो एब्जॉर्ब करती है, कुछ हमारी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस प्रोसेस ऑल टुगेदर, ये प्रोसेस जो है हमारा, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर इसे हम लोग वाटर साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। तो अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है कि फ्रेश वाटर किसे बोलते हैं, सलाइन वाटर किसे बोलते हैं। तो द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशंस, सी, रिवर, लेक्स, आइस कैप, ग्लेशियर्स, ये सारे हमारे जो है पार्ट्स जिसमें हमें वाटर अवेलेबल, ओशन में, सी में, रिवर्स में, लेक्स में, आइस कैप में भी है, ग्लेशियर्स में भी है। द वाटर अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन 2 फॉर्म्स, तो हमारी जो अर्थ है उसमें जो वाटर है प्रेजेंट, वो 2 फॉर्म्स में है, एक फ्रेश वाटर कहा जाता है, एक सलाइन वाटर कहा जाता है। फ्रेश वाटर मतलब जिसके अंदर सॉल्ट जो होती है बहुत कम होती है, वेरी लिटिल, उसके जो डिजॉल्व होती है सॉल्ट वो बहुत ही लिटिल होती है डिजॉल्व। तो ऐसा क्यों, द फ्रेश वाटर कंटेन वेरी लिटिल डिजॉल्व सॉल्ट, ऑल्दो मोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ, जो हमारा 3/4 हमने अभी देखा 71% जो हमारा अर्थ है उसमें वाटर है, तो यहाँ पे 71% वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर, मतलब पूरा ओशन है हमारा। तो यहाँ पे ओनली जो उसमें से 71 को अगर हम लोग उसको वापस 100% कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 71 को हम लोग ने क्या किया, इसे 100% में लेके गए, तो 71 का 100% में 97% जो है हमारा वो सलाइन वाटर है, और रिमेनिंग जो 3% बचा, वो 3% जो है हमारा, वो जो है हमारे पास वाटर है फ्रेश, जो हम लोग यूज़ लेते हैं। लेकिन ये 3% भी मोस्टली हम लोग यूज़ में नहीं ले पाते, 3% का हम लोग 1% ही यूज़ करते हैं, तो 3% का भी हम लोग 1% ही यूज़ कर पाते हैं। ऑफ दिस 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता दिया है कि ऑलमोस्ट 3/4 जो हमारा 71% ओशन वाटर्स है, अगर हम लोग 100% इसको करते हैं तो दैट विल 71 का 100% करेंगे तो फिर 97% जो हमारा वो सलाइन वाटर है, और उसका 3% जो है वो फ्रेश वाटर्स है। 3% का फ्रेश वाटर्स में अगर हम देखेंगे तो 2% जो है इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जो हमारे वहाँ पे ऐसा आइस कैप बनी हुई है, वो हो गया। अब उसमें से 1% जो है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो 1% किस में यूज़ करते हैं ऐसा, तो उसको जिस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे पास, सरफेस वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, एवोपरेशंस जो एटमॉस्फेयर से वापस हमें मिलता है। तो हमारे पास अवेलेबल है 1% इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इन रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स, इसी फॉर्म्स में है। तो सोचो हमारे पास वाटर कितना कम है। एक बार वापस देखो कि 71% हमारा जो है अर्थ है वो वाटर क्या है, ओशनिक वाटर्स है, मतलब सलाइन वाटर्स है। अगर इसको हम लोग 100% करते हैं तो इसका 100% में 97% जो है ये हो गया हमारा ओशनिक वाटर, सलाइन वाटर। 3% जो है हमारा 3% है, उसमें से 2% जो है वो आइस कैप में चला गया, दैट वाज आइस
बार मान लेते हैं या क्या बोल दें, दोनों बराबर है। 1% जो है हमारा वो अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक। तो सोचो कितना कम पानी है और ये 1% पूरे वर्ल्ड उस पर डिपेंड है। द फ्रेश वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो फ्रेश वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है अर्थ के अंदर एंड इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये देखा जाए एक और अच्छी बात इसमें ये बात भी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे अर्थ के अंदर सबके पास ये पानी बराबर नहीं है। क्लाइमेटिकल चेंजेस कंडीशंस के कारण किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास नहीं है। तो फ्रेश वाटर इज फाउंड मोर इन रीजन्स वेयर precipitation is more than evaporation and less in the regions where evaporation is more than the precipitations। तो ये डिपेंड करता है, क्या बताया गया कि फ्रेश वाटर उस एरिया में ज़्यादा है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है और इवोपरेशन कम होती है, और उस जगह भी जहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा है तो उसमें पानी कम हो जाएगी और प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो इज मोर देन इवोपरेशन। तो डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन इवोपरेशन कितना है। अगर इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन मतलब पानी कम हो जाएगी। तो डिपेंड करता है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सलाइन वाटर। तो ये हम लोग सलाइन वाटर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।